آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ NCP کے قومی صدر شرد پوار کی موجودگی میں قومی آہنگی کے عنوان پر ایک پروگرام MGM کے آئنسٹائن ہال میں رکھا گیا۔ واضح رہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے MGM کے آئنسٹائن ہال میں ایک اہم میٹنگ شہر کے دانشوروں کے ساتھ منعقد کی گئی، جس میں NCP کے بانی صدر شرد پوار مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے۔ اس موقع پر انہوں نے BJP پر سخت الفاظ میں تنقید کی اور کہا کہ ان دنوں ملک میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے جو حالات ہیں اس کے لیے مرکز کی BJP حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح دیگر دانشوروں نے بھی اس عنوان پر حاضرین کی رہنمائی کی اور ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے قومی یکجہتی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ آئندہ مقامی خود مختار اداروں اور اسمبلی چناؤں میں NCP بہتر کامیابی حاصل کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار پارٹی کے مائنرٹی سیل کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ محمد خان نے کیا۔ ایڈوکیٹ محمد خان نے شہر کے راشٹروادی بھون پر منعقد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے موقع پر کہا کہ حالیہ ایام میں NCP کو بہتر عوامی حمایت حاصل ہو رہی ہے اور اسی کے سبب مقامی خود مختار اداروں کے آئندہ چناؤ اور ودھان سبھا کے چناؤ میں پارٹی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے خاطر خواہ کامیابی حاصل کرے گی۔ اس موقع پر پٹھان نے کہا کہ وہ آنے والے انتخابات کی تیاریوں کے جائزے کے پیش نظر مراٹھواڑہ کے دورے پر ہیں اور ودربھ کا دورہ ختم کر کے جالنا سے ہوتے ہوئے وہ اورنگ آباد آئے ہیں۔ انہوں نے شہر کے مختلف مقامی خود مختار اداروں کے چناؤ سے متعلق کارکنان کا اجلاس منعقد کیا اور بعد ازاں اس صحافتی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شہر NCP کی عاملہ میں عنقریب مختلف تبدیلیوں کے اشارے بھی پٹھان نے دیے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں مہاراشٹر اقلیتی شعبے کے عہدیداران میں سرجیت سنگھ کنگر، سلیم پٹیل وائے گاؤں پارٹی کے سینئر قائد مشتاق احمد، غیاث باغبان و دیگر موجود تھے۔ اورنگ آباد شہر کے اندر تو ہماری پوزیشن مہاراشٹر کے اندر راشٹروادی کی پوزیشن بھکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مہا وکاس آگھاڑی کی پوزیشن نمبر 1 ہے۔ آنے والے دنوں میں آنے والے جو بھی نوڈنک ہوں گے اس کا نرنائک بھومکا نبھاتے ہوئے ہمارے کاریہ پدادھیکاری آنے والے رزلٹ جو دیکھیں گے آپ، پھر سے ہم ستا استھاپت کریں گے، اس میں کوئی شنکا نہیں۔ ضلع ناندیڑ کے بونڈار حویلی گاؤں میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی منائی تو شر پسندوں نے اکشے بھالے نامی شخص کا قتل کر دیا۔ اس طرح کا الزام ہر جانب سے لگایا جا رہا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ضلع و شہر کانگریس کمیٹی کی جانب سے بھی اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور خاطیوں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے مطالبے پر ایک میمورنڈم علاقائی انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ضلع ناندیڑ کے بونڈار حویلی نامی گاؤں میں اکشے بھالے نامی نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی گاؤں میں منائی تھی۔ اس واقعے کی ہر جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ ضلع کانگریس کمیٹی اور کانگریس کے SC سیل کی جانب سے بھی اس واقعے کی پرزور مذمت کی گئی اور ایک میمورنڈم علاقائی کمشنر کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ خاطیوں کو پھانسی کی سزا دلوائی جائے۔ اس موقع پر پارٹی کے شہر صدر شیخ یوسف کرشنا بھنڈاری، SC سیل کے صدر ڈاکٹر ارون شرساٹ، قیصر بابا، انیس پٹیل، پروفیسر شلونت، گوپ नारायण, अनिल मालोदे और दीगर शामिल थे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये जे दुर्घटना घडली ती हत्या झाली त्याचा मी औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे निषेध करतो आणि आम्ही अशी मागणी करतो की जे मारेकरू आहे त्यांचा केस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवावा आणि त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा। बसमत जिला हिंगोली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स और मुलाजमीन एक अलविदाई तकरीब में मगन थे। उन लोगों ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। इसी दौरान एक हामिला खातून जजगी के लिए वहां लाई गई जो रक्शे ही में जजगी से फारिग हो गई, फिर भी उसकी जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये वारदात ضلع हिंगोली के बसमत तालुके के सरकारी अस्पताल बराए ख़वातीन में पेश आई। अस्पताल ही में जारी किसी अलविदाई इस्तकबालिये की तकरीब थी और डॉक्टरों मुलाजमीन ने अस्पताल के मरीज़ों ही नहीं जजगी के लिए लाई गई इस खातून की तरफ
भी तवज्जो देने में लापरवाही बरती और रिक्शाही में डिलीवरी के बाद भी मजकूरा खातून तड़प तड़प कर रिक्शाही में कुछ देर इंतजार करने पर मजबूर रही। यहाँ रहे कि जिले के ताल्लुका बसमत व इसके अतराफ के इलाकों की खवातीन की डिलीवरी की सहूलियात और ख़ानदानी फलाह बहबूद के ऑपरेशनों के लिए नीज़ दीगर अमराज निस्वा के मालजे के लिए हुकूमत ने खवातीन का अस्पताल कायम किया है। ताहम खवातीन के इस अस्पताल में खवातीन मरीज़ों को किसी भी किस्म की सहूलियात हासिल न होने का मामला मंजर आम पर आया है। मज़कूरा मरीज़ा अलका मोड़ को जब डिलीवरी के दर्द शुरू हुए और उसे अस्पताल लाया गया तो अस्पताल के सारे डॉक्टर, नर्स व मुलाजमीन दफ्तरी औकात ही में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की विदाई तकरीब में मशगूल थे। नतीजतन अलका की डिलीवरी रिक्शे ही में हो गई। उसके अकारिब डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे कि मरीज़ा को अस्पताल में लिया जाए, मगर किसी ने कोई तवज्जो न की और खातून को नौज़ायदा बच्चे समेत कुछ देर मजीद रिक्शा ही में ठहरना पड़ा और तकरीब ख़त्म होने के बाद उसे अस्पताल में अंदर ले जाया गया और शरीके दवाखाना किया गया। अब इस लापरवाही पर अस्पताल अमले व डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो वक्त ही बतलाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के रियासती सदर राहुल लोनीकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भाजपा हुकूमत ने 9 बरस का दौर इख्तिदार मुकम्मल कर लिया है। इस ज़िमन में मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा की जानिब से भी रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात रखी जा रही हैं। कारकीर्द पंतप्रधान म्हणून 9 वर्ष ते 30 मेला त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे। त्यांची ही यशस्वी कारकीर्द जनसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चाने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी केलेलं आहे। यामध्ये बाईक रॅली असेल, युवा संवाद असेल, युवा संमेलन असतील किंवा लाभार्थी संवाद असेल, ज्येष्ठ भारतीय जनता कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी असतील, सर्वसामान्य माणसांना ज्यांना कोणाला मोदीजींच्या सरकारच्या माध्यमातून लाभ मिळाला आहे अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांचे व्हिडिओ घेणं, त्यांच्या बाईट घेणं, जे लाभार्थी या योजनांपासून विविध योजनांपासून वंचित राहिलेत अशा सर्व वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून लाभ पोहोचवणे, यासाठी येणाऱ्या 10 तारीख ते 30 तारखेच्या दरम्यान भारतीय जनता युवा मोर्चा रस्त्यावर उतरून प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचून हे काम करणार आहे। आणि देशाचे यशस्वी पंतप्रधान ज्यांनी आपल्या देशाची नाव, आपल्या देशाची उंची जगभर वाढवली आणि G20च्या माध्यमातून आज आपण पाहतो की अध्यक्षपद देखील आपल्याकडे त्या ठिकाणी आलेलं आहे। निश्चित मला खात्री आहे की भारतीय जनता युवा मोर्चाचा कार्यकर्ता हा तळागाळापर्यंत पोहोचून मोदीजींचं कार्य हे लोकांपर्यंत पोहोचेल। शहर और जिला में शिव राज्याभिषेक का जश्न जोश खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए, तलवारबाजी के करतब दिखाए गए और झांकियां निकाली गईं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जश्न ताजपोशी के 350वें बरस शहर में रंगारंग तकरीब मनाई गई। इस जश्न के मौके पर शिवकाल के मुख्तलिफ हथियारों और झांकियों की नुमाइश की गई और तलवारबाजी के करतब दिखाए गए। तलवारबाजी के इन करतबों को देखकर विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे भी अपने आप को रोक न सके और तलवारबाजी के जुलूस में शामिल होकर तलवार फेरने के करतब दिखाए। शहर पैठन में भी शिव राज्याभिषेक का जश्न मनाया गया। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में कुल जमाती मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर हार डालकर खिराज अकीदत पेश किया गया और शिवाजी महाराज की जय जयकार करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और पार्टियों के कारकुनान और अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज हाल ही में जाहिर किए गए, जिसमें कई तलबा ने मेरिट में कामयाबी हासिल की। उन तलबा के अजीज़ व अकारिब की जानिब से उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। रशीदपुरा के साकिन जैद खान मोहम्मद खान ने भी अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल से 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में 70% निशानात हासिल करके कामयाबी हासिल की, जिस पर उनके वालिदैन ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया है। हेथवे MCN के कैशियर संतोष खड़के के फर्जंद अनुराग खड़के ने सरस्वती भवन विद्यालय से 10वीं बोर्ड इम्तिहान में 88.47% निशानात हासिल किए, जिस पर उनके वालिदैन और अजीज़ व अकारिब ने मुसर्रत और खुशी का इजहार किया है।
MCN के सिक्योरिटी मुलाजिम रविंद्र बबनराव ओगले के फर्जंद रूपेश रविंद्र ओगले ने उज्ज्वला ताई पवार स्कूल सातारा से SSC इम्तिहान में शिरकत की और 86.60% नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की, जिस पर रविंद्र बबनराव ओगले ने अपने बेटे की इस कामयाबी पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। MCN उर्दू न्यूज़ के कैमरामैन व सीनियर रिपोर्टर सतीश खरात के साहिबजादे तेजस सतीश खरात ने 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में ब्रिलियंट इंग्लिश स्कूल से शिरकत की और नुमाया कामयाबी हासिल की, जिस पर उसके अजीज़ व अकारिब ने तेजस की इस कामयाबी पर सतीश खरात और तेजस खरात को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य खानगी प्राइमरी टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ महासंघ औरंगाबाद के जिला सदर पठान हैदर खान के फर्जंद पठान अमान ने 12वीं साइंस बोर्ड इम्तिहान में मौलाना आज़ाद कॉलेज से 78.33% नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की और अपनी जहानत का लोहा मनवाया। कटकटगेट इलाके के साकिन पठान अमान की इस कामयाबी पर कॉलेज इंतजामिया और उनके अजीज़ व क़ारिब ने उनका इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। 10वीं और 12वीं बोर्ड में कामयाबी हासिल करने वाले सभी तलबा व तालिबात और उनके सरपरस्तों को हम MCN उर्दू न्यूज़ की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। दौलताबाद के घाट में हिफाजती दीवार गिर गई है, जिसके सबब यहाँ किसी बड़े हादसे का खदशा है। लिहाजा मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, ये मुतालबा साकिनान की जानिब से किया जा रहा है। वाज़ेह हो के दौलताबाद खुलदाबाद रास्ते पर घाट चढ़ने के बाद मेन मोड़ पर कालिका मंदिर के करीब वाक़ हिफाजती दीवार के गिर जाने से यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए हादसे का खतरा पैदा हो गया है। बताया जाता है कि ये दीवार इससे पहले भी कई मरतबा गिरती रही है, ताहम मुतअल्लिका महकमे की जानिब से उसकी दुरुस्ती कर दी जाती रही है। पिछले दिनों G20 के मौके पर बदेसी मेहमानों के यहाँ से गुजर के पेश नज़र इस रास्ते और दीवार की दुरुस्ती व मरम्मत और रंग रोगन भी किए गए थे। ताहम कुछ ही महीने गुजरे हैं कि ये दीवार फिर से गिर पड़ी है। पता नहीं यहाँ दुरुस्ती व मरम्मत बार बार करनी पड़े, शायद इसी ख्याल से मुतअल्लिका महकमा हर बार नापायदार व गैर मेयारी काम करके बिल निकाल देता है। इस तरह के क़यास व चर्चे अवाम में जारी हैं। इस दीवार के इन्हदाम के सबब खुलदाबाद की जानिब से घाट उतर रही गाड़ियों को बड़े हादसे का ख़तरा लाहक हो गया है और फिर अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में बरसात के बाद वैसे ही कई गाड़ियां अक्सर फिसल कर हादसे का शिकार हो जाती हैं। मुतअल्लिका महकमा फौरी ध्यान देकर इस दीवार की मजबूत तामीर करवाए, इस तरह का मुतालबा अवाम व गाड़ी मालिकान ने किया है। पैठन के आखातवाड़ा नामी मकाम पर एक तनावर दरख्त गिर गया, जिसके नीचे दब जाने के सबब
एक खातून की मौत हो गई। शहर पैठन और ताल्लुका भर के दूर दराज मकामात में भी गुज़िश्ते इतवार को चली तेज हवाओं ने उधम मचाया। मजाफात अखातवाड़ा में एक ज़ईफ़ा पर दरख्त गिर पड़ा, जिसमें 65 साला मुअम्मर खातून गंगूबाई मारुति डोकड़े फौत हो गई। इन तेज आंधियों में कई मकामात पर छोटे बड़े दरख्त गिरे। मज़कूरा बुजुर्ग खातून अपने आंगन में सोई हुई थी कि घर के करीब वाक़े एक बबूल का दरख्त उसके घर पर गिर पड़ा और गंगूबाई दबकर जिंदगी से हाथ धो बैठी। इस हादसे पर गाँव व इलाके में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पैठन पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और वारदात का पंचनामा किया गया। देवीदास आमटे पाटिल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिल्लोड़ का ताल्लुका सदर बनाया गया है। इस इंतखाब का ऐलान गुज़िश्ता मंगल के दिन पुणे में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की सदारत में मुनक़िद जालना लोकसभा हल्के इंतखाब के इजलास में किया गया। जिला सदर कैलाश पाटिल, कारगुजार सदर मनोज घुड़के, साबिक रुकन असेंबली चंद्रकांत दानवे के हाथों देवीदास आमटे को ताल्लुका सदर ओहदे का तकर्रुरनामा सौंपा गया। इस मौके पर बाला साहब सावंत, सिल्लोड़ ज़रूरी पैदावार बाजार समिति के साबिक सभापति ठगन राव भागवत, सुधाकर दानवे, पार्टी की ख़वातीन इकाई की सदर छाया जंगले, प्रवीण काकड़े और अनिल राउत व दीगर कारकुनान मौजूद थे। बेगमपुरा में पेश आई कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुलजिम ने आले कत्ल और कपड़े गोलवाड़ी फाटा इलाके में छुपा रखे थे। 3 रोज कबल हुई कत्ल की इस वारदात में विशाल शिंदे नामी नौजवान को पुरानी रंजिश के सबब कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के मुलजिम गणेश पटारे ने आलाए कत्ल के बतौर इस्तेमाल करदा चाकू और उसके खून आलूद कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुलजिम ने वारदात के बाद ये चाकू और कपड़े अहमदनगर रोड के गोलवाड़ी फाटा के करीब झाड़ झनकाड़ में छुपा कर रख दिए थे। तफ्तीश और तहकीक में मददगार साबित हों, इस मकसद से पुलिस ने ये अशिया अपनी तहवील में ले ली हैं, जबकि मौके वारदात के CCTV फुटेज भी पुलिस ने जमा किए हैं और उनकी जांच की जाएगी। इस तरह की जानकारी भी पुलिस जराये से मिली है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।